Very good evening, children. Today we'll be starting with the next part of maxima minima. That is another method how to solve maxima minima with second derivative test. That is, here instead of differentiating one time, I'll differentiate two times. I'll explain you the method with one example. Then we'll solve the word problems. Okay. Suppose I have f of x as, I'll take the same previous example, x cube minus 3x plus 3. Now I'll be solving this sum with second derivative. Since I am telling second derivative, so first I need to differentiate two times. So I'll get 3x square minus 3. Again I'll differentiate. So I'll get 6x. Okay. After differentiating two times, I will put first derivative as 0. I will put first derivative as 0. So what is first derivative over here? 3x square minus 3 equal to 0. That is x is equal to plus minus 1. Till here things remain same. Now I got two values of x. एक here plus 1, other is minus 1. Am I right? Now what will I do? I will put the first value of x in second derivative. Then I will put second value in second derivative again. I am putting both these values in the second derivative. So if I put 1, I will get 6 times 1, that is 6, which is positive. Am I right? And if I put minus 1, I will get minus 6, which is negative. So my second derivative is coming positive for 1 and negative for minus 1. I am talking about this value. The value is coming positive and the value is coming negative. If second derivative value is coming positive, it means f is minimum at x equals 1. It means function is having minimum value at x equal to 1. When it is negative, I will say function is maximum at x equal to minus 1. This function is maximum at x equal to minus 1. Now this second derivative rule makes it easy for us to solve the sums than the sign change, because when I talk about sign change, it was applicable only if the function is algebraic. If it is trigonometric, it becomes difficult. Okay. Now let us start with the word problems first. Then the next video I will be explaining you about absolute maxima minima sums. Okay. So I am talking about question number 13. Find two numbers whose sum is 24. Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. I want to show that product is as large as possible. It means मुझे product maximum बताना है. So I will say let two numbers be x and y. दो numbers क्या है? x and y. Sum 24 दिया है. So x plus y will become 24. That is, my y becomes 24 minus x. Once you assume your variables, now read the question and try to understand what is asked. Now they are asking product to be maximum. So I will say let p be the product. What is the product of two numbers over here? X into y. So मेरा product आएगा x. What is my y? 24 minus x. See that whichever function has to be maxima minima, that should be with only one variable. Now it is purely in one variable. हम इसको differentiate करेंगे तो ये आएगा dp by dx, that is 24 minus 2x. Then I will put d2p by dx square, second derivative, वो आएगा minus 2. Though it is constant, you have to go for further steps. From here only you understand. सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या है? मैक्सिमम. सम इज नॉट ओवर येट.
I'll do my steps. Put first derivative as 0. Put first derivative as 0. तो क्या आएगा 24 minus 2x equals 0. करेक्ट. That is x आएगा मेरा 12. कितना आएगा x? 12. Now I'll put x equal to 12 in second derivative. That is d2p by dx square. When x is 12, it will not change. It will remain minus 2, which is less than 0. At x equal, this statement क्या बता रहा है अभी कि 12 पे आंसर नेगेटिव है. किस पे नेगेटिव आंसर है? 12 पे. Therefore, I can say product is maximum when my first part is 12. अब x 12 है तो y भी कितना आएगा? 12. So the product of two numbers is maximum when both are 12 and 12. What do you get? When both are 12 and 12. Okay, understood? Let us move on to next problem. Okay, the next problem says that find two positive numbers whose sum is 16. Problem number 16 I will say. So let two numbers be x and y. Two numbers be x and y. So x plus y sum is 16. Therefore y कितना आएगा? 16 minus x. And sum of whose cubes? Sum of whose cubes is minimum बताना है. You have to show that this particular expression is minimum for what value of x and y. तो मेरा p क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 16 माइनस x का क्यूब. करेक्ट. I'll differentiate now. So dp by dx कितना आएगा? 3x square 3 times 16 minus x का square into minus 1. We forget this minus 1 and which gives wrong answer. अगला डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x minus 6 16 minus x plus हो जाएगा. Derivative part you will take care. Now we'll put as usual first derivative as 0. क्या पुट करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे. क्या मिलेगा? 3x square equals 3 times 16 minus x का square. So 3 cut. That is x equals 16 minus x. Therefore x कितना आएगा? 8. कितना आएगा x? 8. Now क्या करेंगे? I'll put x equal to 8 in second derivative in d2p by dx square. So d2p by dx square when x equals 8, I'll put here, that is 6 8s are 48 plus 16 minus 8, 8, 8 6 are 48. I don't care, I know the answer is positive. Therefore p is minimum, positive answer आ रहा है. So I'll say p is minimum at x equals 8. क्या बोलेंगे? p is minimum at x equals 8. So when x is 8, मेरा y भी कितना आएगा? 8 आएगा. कितना आएगा y मेरा? 8. Understood? Yes. Now next sum, very important for your board exam. Very very important. Let me read the question. A square piece, question number 17 I am talking. A square piece, so say I have a square piece with me. Square piece of tin of side 18 centimeter, side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner. By cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that volume is maximum possible? तो ये square है, इसमें से I am cutting squares. See I am cutting these squares here. ये squares मैंने cut कर दिए, तो my figure will be somewhat like this. इस फिगर को if I
इफ आई टर्न दी फ्लैप्स नाउ, इफ आई टर्न दीज फ्लैप्स, ये एक बॉक्स बना देगा. क्या बना देगा? बॉक्स. इस बॉक्स का आई वॉन्ट टू शो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम. क्या बताना है? इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है. कैसे? सो व्हाट आई विल से, लेट अस से द साइड ऑफ स्क्वायर कट बी 1 सेंटीमीटर. एक सेंटीमीटर का स्क्वायर हम कट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम कट कर रहे हैं. अगर कट किया तो व्हाट विल बी दिस लेंथ नाउ? दिस लेंथ विल बिकम, पूरा 18 था, ये x गया, ये x गया, सो इट बिकम्स 18 माइनस 2x. कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2x. दिस हाइट ऑफ द बॉक्स, ये है मेरा x, क्योंकि मैंने x स्क्वायर कट किया है. एंड अगेन दिस लेंथ, ये फिर से आएगा 18 माइनस 2x. क्या आएगा? 18 माइनस 2x. ओपन बॉक्स बन रहा है. लेट v बी द वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या आएगा? L B H. ये जो बॉक्स बना है इसका वॉल्यूम कुछ ऐसा आएगा. इन शॉर्ट द वॉल्यूम विल बी समवॉट x टाइम्स 18 माइनस 2x द होल स्क्वायर. इसको मैं ओपन करूंगा टू मेक इट इजी. 18 स्क्वायर x माइनस 72x स्क्वायर प्लस 4x cube. This is the expression I'll get. Now entire expression is in one variable. हम इसको दो बार डेरिवेटिव लगाएंगे. dv by dx कितना आएगा? 18 स्क्वायर 144x 12x स्क्वायर बराबर. और एक बार डेरिवेटिव लगाएंगे. d2v by dx स्क्वायर कितना आएगा? माइनस 144 प्लस 24x. क्या आएगा? माइनस 144 प्लस 24x. अगेन रिपीट करेंगे. आई विल पुट फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0. तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? ये 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 18 स्क्वायर इक्वल टू 0. हम इसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं. यस. तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये 18 इंटू 18 अपॉन 12. 6 2 जा 6 3 जा 2 9 जा 27 आएगा. इसको फैक्टराइज किया, मेरा x आएगा 9 और x आएगा 3. अगर x 9 लिया तो ये 9 कट हो जाएगा, ये 9 कट हो जाएगा, बॉक्स बनेगा ही नहीं. सो x इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल. x इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल. सो 3 लेंगे. सो डी सेकेंड डेरिवेटिव में x को 3 पुट करेंगे, चेक करेंगे वॉल्यूम मैक्सिमम आता है क्या. दैट इज माइनस 144 प्लस 24 3 जा 72 विच इज नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 आ रहा है, मतलब मेरा सम लगभग करेक्ट है. Hence I can say the volume of the box is maximum when I cut a square of side 3 centimeter. When I cut a square of side 3 centimeter. Are you getting it? Yes, children. A very important sum. Question number 19, children. Now show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle. मीन्स आपको सर्कल फिक्स दिया है. लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी a. इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है. क्या किया है? रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है. सो आई इंस्क्राइब अ रेक्टेंगल ओवर हियर. सो लेट द लेंथ बी x of rectangle, let the breadth be y, and let the radius be a, which is fixed. So here I can say let radius of circle is equal to a, which is fixed. मतलब a कांस्टेंट हो गया. क्या हो गया? a मेरा कांस्टेंट. करेक्ट. और मेरा वेरी क्या होगा? x और y वेरी होगा. Of all the rectangles inscribed in a given circle, the square has maximum area. अगर रेक्टेंगल स्क्वायर बनता है तो ही एरिया क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी. In short, I have to prove that area of the rectangle is maximum when x and y are same.
तो यहाँ पर x और y को a से रिलेट करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आएगा 4a², दैट इज मेरा y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x²। क्या मैक्सिमम बताना है? एरिया। सो लेट ए बी द एरिया। किसका एरिया मैक्सिमम बताना है? रेक्टेंगल का। वो क्या आएगा? x इंटू वाई, दैट इज एरिया आएगा x, मेरा y क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x²। अब नॉर्मल इसको डेरिवेटिव लगाएंगे, dA बाई dx, u भी रूल लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² माइनस 2x² अपॉन 2 टाइम्स 4a² माइनस x²। कट कट, इसको फिर से डेरिवेटिव लगाएंगे तो यह आएगा d2a बाय dx² इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x²। इसको लगाएंगे u बाई v रूल, तो u बाई रूल से क्या आएगा? माइनस, नीचे हो जाएगा 4a² माइनस x², है ना, ऊपर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x² इंटू x² का 2x माइनस x², और इस रूट का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस x²। ठीक है, इसलिए डेरिवेटिव, इससे हम बाद में निपटते हैं। हमारा काम क्या है? आफ्टर गेटिंग बोथ डेरिवेटिव्स, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0, so I will put dA by dx 0, तो दिस इक्वल्स दिस हो जाएगा, दैट इज 4a² माइनस x² इक्वल्स x² अपॉन 4a² माइनस x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² माइनस x² इक्वल्स x², सो 2x² इक्वल्स 4a²। सो x आएगा प्लस माइनस 2 है, हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिव लेंगे, सॉरी रूट 2 आएगा, इसे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। x कितना आया? रूट 2 है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, सो d2a बाई dx² एट x इक्वल्स रूट 2a, क्या आएगा? माइनस 2 टाइम्स रूट 2, सॉरी 2 कट, सो माइनस रूट 2a अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 4a² माइनस 2a² आएगा, दैट इज रूट 2a। ये माइनस, इसे सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा आपका आंसर? पॉजिटिव। सिंप्लीफिकेशन पार्ट यू डू, दिस होल आंसर विल कम, वी वांट टू प्रूव इट इज मैक्सिमम, तो पूरा आंसर निगेटिव आएगा। क्या आएगा पूरा आंसर? निगेटिव। दिस आंसर विल कम लेस देन 0। क्या आएगा आंसर? लेस देन 0। हेंस वी कैन से area is maximum when x is equal to root 2a. Yet I have not proved that it should be a square. x root 2a है तो y कितना आएगा? Therefore I can say y square root of 4a² minus 2a², that is y is root 2a. मेरा y और मेरा x सेम है, therefore it should be a square by default। क्या होना चाहिए? वो स्क्वायर ही होना चाहिए, तो ही एरिया क्या आएगी उसकी? मैक्सिमम। अंडरस्टूड? यस एवरीबॉडी? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इट इज ऑफ सिलेंडर। दे हैव गिवन अ फिक्स्ड सरफेस एरिया, they have given a fixed surface area. Let us see that. Okay, so it is told that show that the right circular cylinder of a given surface, means surface area is constant and maximum volume. I want to prove that volume is maximum. So I'll say let R H
एस वी बी रेडियस, हाइट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। क्या कांस्टेंट बोला है? सरफेस एरिया कांस्टेंट बोला है। तो सरफेस एरिया क्या आएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो मेरा s अपॉन 2 पाई लिया तो क्या हो जाएगा? आर एच प्लस आर स्क्वायर। s फिक्स्ड है, 2 पाई भी फिक्स्ड रहेगा। टू मेक इट सिंपलर, let us take it as a new constant. So I'll say therefore RH plus R square equal to K, where K is nothing but S upon 2 pi. सिर्फ हमारे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। तो मेरा H क्या आ जाएगा? K माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। H क्या आ जाएगा? K माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। क्या मैक्सिमम बताना है? वॉल्यूम। So volume of cylinder is nothing but pi r square h, है ना। So pi r square h कितना है? K minus r square upon r। r कट, so मेरा वॉल्यूम आ गया pi r k minus pi r क्यूब। अब तो काफी इजी है, एक ही वेरिएबल है, लगाओ 2 बार डेरिवेटिव। So dv by dr पाई के कांस्टेंट है माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। अब सेकेंड डेरिवेटिव d2v बाई डी आर स्क्वायर क्या आएगा? 0 माइनस 6 पाई आर। वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए था, देखो नेगेटिव आंसर आ गया। सम खत्म नहीं हुआ है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बाकी है। सो पुट dv बाई डी आर 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा पाई के 3 पाई आर स्क्वायर, कट कट। आर स्क्वायर कितना आ रहा है? के बाय 3, आर आ गया रूट ऑफ के बाय 3, ठीक है। अब चेक करेंगे इस वैल्यू पे क्या मैक्सिमम वॉल्यूम आती है। सो d2v बाय डी आर स्क्वायर एट r इज इक्वल टू रूट के बाय 3 आएगा माइनस 6 पाई रूट के बाय 3। ये रूट पॉजिटिव आएगा, पूरा आंसर नेगेटिव है। हेंस आई कैन से वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू रूट के बाय 3। बट इन्होंने क्या बोला है? हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। मुझे बताना है कि हाइट डायमीटर के बेस से इक्वल है। इन शॉर्ट h 2r आना चाहिए, तो यहां से h निकालते हैं। Therefore h क्या आएगा? k माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? k बाई 3 अपॉन r। r क्या है? रूट k बाई 3, ठीक है। आई होप आई हैव डन राइट एवरीथिंग। यस, तो ऐसा हो जाएगा। तो h आ रहा है मेरा 2k by 3 अपॉन रूट k by 3, दैट इज मेरा h आएगा, इसको और सिंप्लीफाई किया, ये आएगा 2 टाइम्स रूट k by 3, दैट इज h इज 2 टाइम्स रूट k by 3 कितना है? r, दैट इज h इज इक्वल टू 2r, मतलब डायमीटर ऑफ बेस है। समझ में? 2r क्या है? डायमीटर ऑफ base. Are you getting it? Yes. Now next 21 is also similar, children. Let's move on 21 now. एकदम सिमिलर सम है, खाली वहां पर वॉल्यूम दिया है आपको। What is given to you? Volume is given to you in number. ठीक है? 21 of all the closed cylindrical cans for given volume 100 centimeter cube. सो वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्लोज्ड कैन बोला है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। तो हमें क्या प्रूव करना है कि सरफेस एरिया मिनिमम है। क्या करना है? सरफेस एरिया। सो वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज
h हो जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा h 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया मिनिमम बोला है, क्लोज्ड है, सो 2 पाई आर प्लस h या 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। h कितना है 100 बाय पाई आर स्क्वायर। कट 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 कट, मेरा सरफेस एरिया आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाय आर। पूरा आर के अंदर आ गया, इसको डेरिवेटिव लगाएंगे ds बाय डी आर, सो 4 पाई आर 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव लगाएंगे, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 400 पाई आर क्यूब। अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव एज यूजुअल जीरो पुट करेंगे, सो ds बाय डी आर 0। क्या आएगा 4 पाई आर 200 बाय आर स्क्वायर। I missed something. Is it the case? 2 pi r square plus 2 pi r h. नहीं, so r क्यूब आ जाएगा 50 बाय पाई। कितना आ रहा r क्यूब 50 बाय पाई, दैट इज r आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 50 बाय पाई, दैट इज d2s बाय dr स्क्वायर। मतलब ये 4 पाई प्लस 400 बाय आर क्यूब। आर क्यूब कितना है 50 बाय पाई। नो मैटर वैल्यू क्या है, आंसर पॉजिटिव आने वाला है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सिंस द आंसर इज पॉजिटिव, हेंस s इज मिनिमम एट r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 50 बाय पाई। क्या आएगा एट r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 50 बाय पाई। Understood everybody? Hope you are getting it nicely. Yes. Now remaining sums we'll do in the next class with absolute maxima, minima.